Girl Republic recorded show for 7th September, obviously because it's our Defense Day, and it's quite special for all of us Pakistanis. And today I'm not alone here, obviously I've got my co-host with me, which is Tahir. So hi Tahir. Hello, Max. How are you? I'm good, how are you? I'm great. How's it going? It's going good. The set looks really nice. I know, it looks really different, doesn't it? Yes, very patriotic. Yeah. I'm impressed actually. So am I, because obviously आज हमारा जो है Sunday को था स्पेशल, हमारा जो स्पेशल दिन था संडे को, क्या था हमारा 6 सितंबर डिफेंस डे वी वर सेलिब्रेटिंग यस्टरडे, और आज 7 सितंबर है तो हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स डे भी मना रहे हैं। तो एज यूजुअल जो ARY नेटवर्क की प्रैक्टिस रही है, स्पेशली ARY म्यूजिक की प्रैक्टिस रही है कि इवेंट्स को, इन फेस्टिविटीज़ को स्पेशल बनाने के लिए वी गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड हम आउट ऑफ द माइलेज जाके आपके लिए एक ऐसा शो डिज़ाइन करते हैं कि जिसमें आपको फील हो कि बाकी देयर इज समथिंग यूनिक एंड समथिंग डिफरेंट अबाउट द शो टुडे, कीपिंग द रिचुअल एंड फॉलोइंग द ट्रेडिशन। टुडे वी हैव अगेन put an effort to make this show very special for you guys, and it's just not me and Bex who are going to make the show special for you guys, but आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज यहाँ बैठी हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे, एंड दे आर वेरी मच रेलेवेंट टू व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे इज पाकिस्तान एयरफोर्स डे। और विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं चलूंगा अपने गेस्ट की तरफ और इनका एक जल्दी से क्विक इंट्रोडक्शन आप लोग से करवाऊंगा। ऑन माय राइट सिटिंग द वेरी फर्स्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला, और उनके साथ बैठी हैं आयशा सलीम जो कि है एक इंजीनियर, फ्लाइंग ऑफिसर आयशा सलीम, एंड नेक्स्ट टू हर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्क्वाड्रन लीडर अमीना खान। कैसे आप लोग? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो, एंड आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू गाइस बिकॉज इट इज सच एन ऑनर for ARY to have you guys on board on this special very day. How do you guys feel about it? Thank you for giving us the opportunity to speak to us, to speak our heart out. Thank you so much. Thank you, and I believe it's an honor कि हम अपनी Air Force की को represent कर रहे हैं. It's an honor for us also. Excellent, excellent. Exactly. And especially एक और बात मैं बता दूं कि I was very much excited about this thing when I was told कि आप लोगों ने पाकिस्तान Air Force से ये एक टीम आएगी जिसको आप लोगों ने इंटरव्यू करना है स्पेशल ऑन गर्ल्स रिपब्लिक। So it was the very first time for me as well कि एक one-to-one interaction होगा इस तरह के लोगों के साथ who are very special to all of us, all of the Pakistanis, क्योंकि हम घरों पर बैठ के आराम से बैठ के अपनी नॉर्मल लाइफ्स जी रहे होते हैं, अपनी जिंदगी गुजार होते हैं, बट जमीन पर और आसमान पर कुछ लोग होते हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और ये वही है जो हमारी आसमानों पर और सरहदों पर हमारी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। Bex, how do you feel about being safeguarded by these safe hands? Obviously without them, without Pakistan's Air Force, right? Like हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी सेफ्टी कौन करेगा? So with them we're safe. Yes, exactly. वो जो कहते हैं ना कि you are in safe hands, तो I think we can proudly say कि we are in safe hands because we have these beautiful people looking after us. And again, thank you so much guys for doing this esteemed job that you guys are doing. अच्छा, starting with the questions, I would start with the ladies here. कि women empowerment की हम लोग बात करते हैं in general, मीडिया पे different campaigns हम देखते हैं, ठीक है ना, but when it comes to personally playing a role, ठीक है, it is quite a bit hard for an individual lady to come out, ठीक है, अपने घर से बाहर निकल के वो इस तरह की सर्विसेज को ज्वाइन करे। How was the experience for you? For me, it's an excellent experience. I'm a doctor by profession, और I believe कि I'm lucky कि to be among the few people के जो Air Force में अपने officers को उनको serve कर रहे हैं, because मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इनकी health से related issues को deal करती हूँ, तो I'm lucky. I feel and it's a very good environment. Excellent, excellent. Aisha, आप अपना कुछ बताएं कि I mean when you started and did you ever think कि आप पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन करेंगी? इतनी हाईली प्रेस्टीज एक इंस्टीट्यूशन है। Well, I've always been interested with aircrafts, and I wanted to be an engineer. So Air Force provided me both of these opportunities. मतलब Air Force में aeronautical engineers होते हैं, हम लोगों का काम होता है aircraft maintenance, radars maintenance, जितनी भी maintenance और technical jobs होती हैं, engineers are there for them. So for me it is a very good experience. मैं professionally भी I'm doing what I wanted to do, or other than that being a part of Air Force, ये itself एक बहुत rewarding experience है, बहुत अच्छा लगता है। ये आपको पता होता है डेली कि हम अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, वी आर सेफ गार्डिंग पीपल, हम लोग एक ऑपरेशनल एसेट्स जो है एयर फोर्स के उनको मेंटेन कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स मी फील हैप्पी एवरी डे।
Excellent, excellent. On this point, before the show we were having a small chit chat. तो वो एक बात कहते हैं, when you go to the restaurant, don't mess with the people who handle the food. But यहाँ पर since आयशा सलीम ये सारी maintenance जो होती है flight की, ठीक है, वो सारी चीजें ready करती है. She actually prepares the machine कि ये सारी set है. तो the pilots out there, they cannot actually think of messing up with Aisha. True. So she is the very crucial person there. So don't even think of that. Next, Abdullah हमारे साथ है. Abdullah. Since you were telling me कि it's not in the family, ठीक है ना, that was a surprise, it came as a surprise for me, क्योंकि usually ऐसा होता है कि आपकी family में होता है तो कहते हैं कि मेरे father pilot थे या मेरे grandfather थे, तो it actually runs in a family most of the time, but अब्दुल्ला के केस में ऐसा नहीं है. जैसे कि बाकी भी पाकिस्तानी बच्चों की तरह मैं भी जब छोटा था तो इन वीडियोस से एयरफोर्स की सॉन्ग से डॉक्यूमेंट्री से काफ़ी इंस्पायर होता था और उस मोटिवेशन को लेके कि मुल्क के लिए कुछ करना है. I grew up and then back in 2006 I was just like a normal guy. I applied in the Air Force and then I had a determination, I had my aim, what I had to do, and then Alhamdulillah I got clear. Then each and every step, it was a long journey now till now 2015. So here I'm in front of you sitting as an operational fighter pilot. Wow. वाह 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 यार, वाकई मतलब कि अब्दुल्ला ने एक बात है कि back in 2006 he was just a normal guy, now he has got wings. Yeah. That's not incorrect to say. और एक एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी फैमिली में इस तरह की चीज नहीं है, ठीक है ना. इट्स इजियर फॉर देम कि जिनकी फैमिली होती है तो एक अलग मोटिवेशन होती है, एक अलग सपोर्ट होता है, बट व्हेन यू आर द वेरी फर्स्ट वन टू सेट द माइलस्टोन, तो इट्स वेरी हार्ड. अब्दुल्ला, क्या चीजें थी, क्या डेफिनेटली यू हैव कम अक्रॉस अ लॉन्ग वे, ठीक है ना, डिफिकल्टीज भी हुई होंगी. प्रिसाइसली what hardships you would remember and you would like to share with us? Initially when we reported into the academy, I was from the civil background, so I didn't had an idea कि क्या होगा. Once I got cleared, I was so happy that I would be treated like officers and I will go there, have fun, fly the planes and things like that. But it was obviously not like that. So you have to get into the military shape, then you got the opportunity to fly and there is a specific training. So I just reported, didn't have such a brief कि क्या होने वाला है मेरे साथ. So once I entered into academy, जो ख्वाब लेके गया था वो उस वक्त थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि मैं कहाँ आ गया. Then चूर होते हुए नजर आ गया कि यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया. It was such a hard time, definitely, but I had in my mind that I have to go through it so that I should achieve what I want to achieve. तो उसमें भी इनिशियली जब गए तो सीनियर से काफी रैगिंग शैगिंग और रैगिंग तो मुझे पता हर जगह होती है. मतलब स्कूल कॉलेजेस में तो रैगिंग होती है, लेकिन मैंने सुना सिंस हमने सारे स्पेशल जो आर्मी रिलेटेड टीवी सीरीज और सारी चीजें अल्फा ब्रावो चार्ली हमने देखा, तो वी हैड एन आइडिया कि किस तरह की रैगिंग होती है, बट इन रियल क्या है रैगिंग का, क्या लेवल है? Obviously, as a military person, first they want to tell you that you have to obey all the orders. All the orders means कि जो भी आपको कमांड करें obey करें. तो then they used to drag us throughout the day. काफ़ी हार्ड होता था फॉर अ सिविल पर्सन जिसका हम शुरू में इतना स्टेमिना भी नहीं होता था टू डू दैट. देन वी डेफिनेटली बिल्ड दैट स्टेमिना. तो उसमें जो है एक मैं छोटा सा आपके साथ वाक़या शेयर करना चाहूँगा. इनिशियली देयर वाज अ ब्लॉक जिसमें हम रहते थे. उसमें ब्लॉक में इट वाज रिसालपुर की समर्स थी एंड रिसालपुर इट्स क्वाइट अ हॉट एरिया. वहाँ पे तकरीबन 40 to 45 डिग्रीज चार्ली टेम्परेचर नॉर्मली होता है. तो दिन में हम लोग थ्रू आउट द डे रैगिंग, डूइंग पनिशमेंट्स, रनिंग, पुशअप्स, ये सारी चीज़ चलती थी. रात में जब थक के हम रूम में आते थे तो इट वाज सो हॉट बिकॉज दैट वाज अ टॉप फ्लोर. और उसमें होता ये था कि टॉप फ्लोर की आधी एक्सटेंशन में सीनियर्स रहते थे और आधी एक्सटेंशन में हम रहते थे. ठीक है. जिस एक्सटेंशन में सीनियर्स रहते थे दैट वाज इंसुलेटेड बाय द रेड ब्रिक्स. तो रेड ब्रिक्स उनके रूम्स को इतना हॉट नहीं करती है नाइट. बिल्कुल. तो जिस रूम में हम रहते थे रात में जाते थे इतनी गर्मी होती थी, हम कहते थे यार कहाँ आ गए, पूरे दिन के थके हुए और अब ये रात में जो है नींद नहीं आ रही होती थी. डिफरेंट वेज यू फाइंडिंग डिफरेंट वेज कि किसी तरह नींद आ जाए. कभी कपड़े गीले कर लिए, कभी बैग गीला कर लिया. तो वन डे वी डिसाइडेड कि यार वी नीड टू फाइंड आउट कि ऐसा क्या है कि सीनियर्स इतना आराम से सो रहे होते हैं और हमें नींद नहीं आती. तो वी फाइंड इट आउट कि भाई उनकी तो ऊपर ब्रिक्स की आइसोलेशन हुई है पूरी टॉप फ्लोर पे, सीलिंग पे. एंड देन व्हाट वी डिड इज वी डिसाइडेड ओके लेट अस हैव अ वीकेंड. वीकेंड आया, सीनियर चले गए अपने घरों पे. व्हाट वी डिड इज देयर वर 600 ब्रिक्स. हमने उनकी फ्लोर से उठाई, उनकी सीलिंग से उठाई, वी पुट इट ऑन आवर सीलिंग. तो फिर वी हैड अ वेरी गुड वीक. थ्रू आउट द वीक वी वर सो हैप्पी. हम इतने रिलैक्स थे, थके हुए आते थे, पनिशमेंट करके आराम से सो जाते थे. अच्छा अब्दुल्ला, आपके सीनियर्स देख रहे हैं इस वक्त तो दे लो. तो it was a part of definitely it was a part of academic life. Now we are mature enough कि वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, हम भी अंडरस्टैंड कर सकें.
तो उसमें फिर उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई कि इतने आराम से कैसे रह रहे हैं और गर्मी उनकी तरफ होना शुरू हो गई है। तो देन दे फाइंड इट आउट, और उन्होंने जो मेरे साथ किया वो डेफिनेटली मैं आपको नहीं बता सकता क्या किया, बट ऑफ द कैमरा पूछा जाएगा। हाँ, तो ऑफ द कैमरा हम पूछ सकते हैं इसको, हम लेकिन कंटिन्यू करेंगे एक पैकेज की तरह हम जा रहे हैं गाइस। सो या डोंट गो एनीवेयर, वॉच दिस पैकेज एंड वी विल बी राइट बैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रेक। You guys are watching Girls Republic special show for Defense Day, which is today, which was yesterday, but today is Monday, so we're celebrating it today. And I've got my co-host with me, Tahir, and we've got Pakistan Air Force team over here. I think it's always, you know, I don't know if it happens with you guys as well, but मैं forces से related कोई भी वीडियो देखता हूँ ना, it gives me chills, you know, एक spine chilling और goosebumps मुझे होता है। Yes, same thing happens with me, yeah. आप लोग के साथ being part of, you know, the forces itself. I just watched this video, same feeling. See, it happens with everybody really. At least हम इस Air Force में हैं तो I feel कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो I feel lucky कि मैं Okay, तो आमना आप ये बताएं कि obviously you're a doctor, right? तो as a normal doctor और जो आप Air Force की डॉक्टर है उसमें क्या डिफरेंस है? There is no difference. हम इस तरह दो तरह के तरीके होते हैं कि आप Air Force में डॉक्टर बन के then you join the Air Force. So डॉक्टर आप सिविल से बन के you can anytime join the Air Force. उसमें हमारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होती हैं, नॉर्मल GDMOs भी होती हैं. So you have an option. तो आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं. Okay. So they're just like normal doctors. All right. Okay. तो आप बताएं कि इंजीनियरिंग में क्या आयशा के क्या डिफरेंस होता है और क्या ट्रेनिंग होती है, क्या ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग जो इंजीनियर्स की होती है वो जस्ट लाइक डॉक्टर्स इंजीनियर्स के देयर आर टू ऑप्शंस. यू कैन जॉइन एयर फोर्स एंड देन स्टडी टू बी एन इंजीनियर, और यू कैन बी एन इंजीनियर एंड देन जॉइन एयर फोर्स. तो आई जॉइंड एयर फोर्स एंड देन आई बिकेम एन इंजीनियर. तो इंजीनियरिंग भी रिसालपुर में हम लोग होते हैं फॉर 4 years. वहाँ पर नस्ट से हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद रिस्पेक्टिवली हम जहाँ भी वी आर पोस्टेड तो हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रेडार्स, कम्युनिकेशन, ऑल दी सिस्टम्स, इनोवेटिव न्यू थिंग्स वी आर ट्राइंग. तो इंजीनियर्स के ये सारे काम हैं. ठीक है, ओके. एंड आई वुड से कि जैसे हम लोग फोर्सेस को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि जो पर्सनैलिटीज होती हैं बड़ी स्ट्रिक्ट सी और यू नो इस तरह से होती हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि स्टूडेंट लाइफ में आपने बहुत मौज मस्तियाँ और ये सारा कुछ किया होगा. आई मीन ऑफ कोर्स द स्टडीज आर सीरियस, एकेडमिक्स काफ़ी सीरियस होती है, लेकिन इसके अलावा भी एक फन यू नो एस्पेक्ट होता है. तो उसका कुछ एक्सपीरियंस आई वुड लाइक यू टू शेयर. फन उसमें यही कि जब तक आप जूनियर्स हैं तो सीनियर्स आपकी रैगिंग कर रहे हैं, आपने पढ़ना भी है. आपकी क्या रैगिंग थी? रैगिंग हमारी इज प्रीटी मच द सेम एज द बॉयज. अब्दुल्ला की तो लिपस्टिक लगी थी, मुझे पता है. नहीं, हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है. उसमें वही कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने होते हैं बीइंग गर्ल्स हम लोग, और पाकिस्तान में उस तरह एथलेटिक इतना कल्चर नहीं है. तो जब हम अकेडमी में जाते हैं तो इट्स अ लिटिल टफ कि जब हम सारा क्रॉस कंट्रीज भाग रहे हैं और पुशअप्स कर रहे हैं, हाँ, और वो सारा कुछ चल रहा होता है साथ साथ. उसके अलावा इंजीनियर्स की पढ़ाई चल रही होती है साथ साथ. तो इट्स अ लिटिल टफ, बट यही होता है कि वहाँ पर कोर्समेट्स होते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं एज अ ग्रुप. वी एंजॉय, मजा आता है. रैगिंग का बेसिकली मकसद ये नहीं होता कि आप किसी को भी मतलब कि डाउन करें. बेसिकली इसमें होता है कि आप वन थिंग इज योर फिजिकल स्टैंडर्ड दैट शुड कम अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अ सोल्जर, सो दैट इन केस कल को कोई ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी एनिमी टेरिटरी में यू हैव टू कम बैक, तो आपके इतने स्टैंडर्ड हो कि आप उसको सर्वाइव कर सकें. यू हैव शुड बी फिजिकली मेंटली बोथ वेज यू शुड बी फिट. तो बेसिक पर्पस ऑफ रैगिंग इज दिस, नॉट दैट लाइक यूनिवर्सिटी में लिपस्टिक लगा दी एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, तो अभी आपने अपना कितना फर्ज निभाया है फिजिकली फिट करने के लिए जो जूनियर्स आए? It was when I was in academy, definitely आपको it's a cycle. आपके साथ जो होता है फिर then you transform it to the juniors. The cycle then goes on and on. And then after getting over with the academy, then you come in a different life जहाँ पे आप you are in a squadron, then you have to get training in the squadron, different kind of trainings, so that to get that efficient, so that if the war broke out, आपकी ज़रूरत पड़ती है मुल्क को, तो आप you should be ready enough to do the best you can get out of you. And otherwise, once you are that much mature and that much groomed enough, then you groom your juniors. So it is like that, and training goes on till the ठीक. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विच आई पर्सनली वांटेड टू आस्क पीपल हु आर एक्चुअली फ्रॉम द फोर्सेस, ठीक है ना. दिस इज स्पेशली जो हमारी नेबर में राइवलरी है, ठीक है ना, आफ्टर द रिसेंट जो उनका
गवर्नमेंट आई है उसके बाद से एक हमने देखा है कि देयर इज बिट ऑफ देयर इज एडवांसमेंट इन द डिस्टर्बेंस इन देयर बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है ना, जो हार्मनी थोड़ी बहुत थी, ठीक है, वो थोड़ी सी उसमें फ्लक्चुएशन है एंड अजीब गरीब थोड़े से दो आई मीन वी बोथ कंट्रीज आर इमोशनल, ठीक है, हम बड़ी इमोशनल कौमें कहलाई जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे नेबर से अजीब गरीब कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लाइक दीस डेज हम सुनते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो योर फीलिंग्स कि हमारा जो विद इन इंस्टीट्यूशंस जो कल्चर है क्या स्टैंड्स है? I would like to say that Pakistan is basically a peace-loving country. As long as there is no substantial reason to go into war, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी नेशन को लेकर उस एक फेज में ड्रैग आउट ना किया जाए, ठीक है। तो कैपेबिलिटीज़ हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, माशाल्लाह ज़र भी चल रहा है। 65 में भी एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव की थी, तो वो कोई इशू नहीं है, बट यही है कि पाकिस्तान प्रेफर्स पीस और वी आर टेकिंग एक्शन एट एन अप्रोप्रिएट लेवल। उसमें ये नहीं है कि एवरीथिंग शुड बी मेड पब्लिक और बताया जाए, बट अदरवाइज देयर इज नो tendencies of Pakistan to go unnecessarily into a phase where you do not need to go. But we are well prepared. We are well equipped. Yeah. We can rely on you guys. Definitely. Obviously. Excellent, excellent. अच्छा, डेफिनेटली हेल्थ के साथ मेंटल जो फिटनेस होती है, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टू मेक श्योर दैट आवर जवान्स आर इन फुल कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेटजी होती है बीइंग अ डॉक्टर कि आप सारे जो इनकी जो टीम है, ठीक है, व्हाट स्पेशल प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज यू गाइस कम अप विद? एयरफोर्स इज लाइक अ फैमिली। हम लोग वी मेक श्योर कि इंटरविंग हमारे आपस में मिलें ऑफिसर्स के बाद, बिकॉज इट्स अ सीरियस जॉब। तो ऑफिस के बाद भी हमारी एयरफोर्स में इस तरह के फंक्शंस होते हैं, इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, तो इट्स गुड फॉर मेंटल हेल्थ। फैमिलीज़ की गेट टुगेदर्स होती हैं, इस तरह के एक्सकर्शन ट्रिप्स होते हैं एयरफोर्स के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो उसमें फिर किसी को इश्यूज हो वो डिस्कस करते हैं। तो आई बिलीव के फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ इज very related to physical health. Exactly. So if you're mentally you're at peace, at rest, तो physical भी आपका. क्योंकि it's a tough job, especially when I'm referring to these kind of situations, these kind of statements coming from the rival country, ठीक है. What happens is कि psychologically बंदा थोड़ा सा stress में आ जाता है. I mean being the common man, हम तो सोशल मीडिया पे जाके अपनी भड़ास निकाल देते हैं, इधर उधर शोर मचा दिया, ठीक है, बट यू गाइस इन अ पोजीशन टू एक्चुअली यू गाइस कैन एक्शन, ठीक है ना. आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ वेरी प्रिसाइज आंसर और समथिंग लाइक दैट, बट साइकोलॉजिकली इनको कितना हेल्प करने के लिए कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह डिजाइन होते हैं कि हाउ डू यू एक्चुअली कंटेन ऑल दीज इमोशंस? लाइक आप लोग का मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई रिजिड बिहेवियर हो या कोई इस तरह का कोई वॉलेंट वो हो, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू सर्च इट ऑन द इंटरनेट, ठीक है, बट आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी वीडियोस एंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम द नेबरहुड, बट हमारी इंस्टीट्यूशन की क्या ब्रिंगिंग है? आई वुड लाइक टू नो कि साइकोलॉजिकली किस तरह क्या इनकी सेशंस होते हैं या डेफिनेटली हमारे पास वी हैव साइकोलॉजिस्ट आल्सो एंड जिनको अगर किसी को इश्यूज है, कोई फैमिली के इश्यूज हैं, सेकेंडली अगर उसका रिलेटेड जिस आप बता रहे हैं कि गुस्सा आता है देखकर उस तरह भी इश्यूज है, तो वो डिस्कस किए जाते हैं एट अप्रोप्रिएट लेवल और उनसे बताया जाता है, गाइड किया जाता है जूनियर्स को कि होल्ड योर हॉर्सेस, अभी इतना कुछ नहीं, अब जो ऑर्डर आपको देगा वो आपने फॉलो करना है. बिल्कुल. सो दिस इज व्हाट वी डू. एंड अब्दुल्ला जब खून गर्म होता है ना, जवानी जोश मारती है, ठीक है ना, इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड टू टेक इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स, ठीक है. उस वक्त क्या स्ट्रेटजी होती है माइंड में? क्योंकि उस वक्त तो इतना गुस्सा आ रहा होता है और आप इस पोजीशन में है कि आप इमोशनली बड़े अटैच होते हैं अपनी कंट्री से, अपनी जॉब से, ठीक है, बड़ी डेडिकेशन होती है एंड यू आर your job full heartedly, and at the same time you have to hold yourself back at so many cases and contain so many things, much of anger, much of frustration and much of so many things, and I have never seen a Jawan being so much vocal about these issues or bad mouthing anything. So how hard it is? डेफिनेटली आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपनी फीलिंग्स पे. इट इज़ लाइक दैट. आप जब भी कुछ सुनते हैं आपके मुल्क के बारे में कुछ बुरा कहे तो वी आर बीइंग ट्रेंड कि हम इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करें, और एट द सेम टाइम वी आर बीइंग ट्रेंड कि हम काम रहें, और इन केस कोई ऐसा वक्त आता है कि हमें अपनी जो है काबिलियत का मौका दिखाने का मौका मिले, और हर एक जवान की ख्वाहिश होती है कि जिसके लिए वो ट्रेन हुआ है, आई बीन ट्रेन फॉर 9 years फॉर दिस दैट मूवमेंट, कि मुझे वो वक्त मुझे मिल जाए, बस आई एम जस्ट काम कि अगर if I don't require to do that तो मैं Okay, so I think कि आपकी जब ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका हुआ कि जो अभी तक याद हो, जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? एक हमारा जो है एयर डिफेंस अलर्ट होता है, AD उसको हम कहते हैं, उस पर जो है हम ऑल द टाइम एयर फोर्स इज रेडी टू रिस्पॉन्ड एनी काइंड ऑफ एरियल थ्रेट कमिंग इनसाइड द पाकिस्तान. तो उसमें जब भी आपके जो नए पायलट जाते हैं वहाँ पे, इट वाज माय फर्स्ट डे, तो उसमें जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है उस थ्रेट को
कोई भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट विद इन 6 मिनट यू हैव टू गो इन द एयर एंड रिस्पॉन्ड टू दैट थ्रेट. तो मेरी फर्स्ट ड्यूटी थी एंड आई वाज नॉट नोइंग कि मेरी ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो कि whether I'm going to react it to और इतना मेरा है कि मैं उसको react कर लूँगा or not, because you have to run to the aircraft you're sitting, you have to run to the aircraft, you have to start up the aircraft and you have to taxi out and then got airborne and respond for that threat. उसमें एक siren बजता है जिस पे पायलट जो है वो भागते हुए जाते हैं. तो there was also my senior was checking me, तो मुझे नहीं पता था, and the siren rings and I was just sitting normal. I see that the siren runs, I rush to the aircraft, pick my helmet, get into the aircraft, and even the guy who was seeing me off, we call it a crew chief, that sees off the aircraft. He was also not paying and he was saying that Allahu Akbar, Allahu Akbar. It was just like emotional case, something is coming to Pakistan and this guy, the pilot is going to respond to it. Then I started up and then go and then it was well done, you did it in time, and then I came back. So then I calmed down, मुझे realize हुआ कि I am ready enough to respond and kind of threat अगर हमारे मुल्क पे थ्रेट पड़ता है तो हम तैयार. Wow, this is impressive. So even if those watching a movie or middle of anything, he would let go everything, ठीक है ना. और कुछ इस तरह का होगा तो फिर आयशा भी डेफिनेटली इनको भी रेडी होना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो पेडिक्योर मैनिक्योर कराएंगे. Yeah, you just have to be prepared. Exactly. बस वो अपना आखिरी नाखून कर लो फिर मैं जानती ऐसा नहीं होगा. So यार अगर जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, we guys have an amazing team of such reliable and safe hands here, ठीक है, and that's the sole reason you are just sitting there chilling in your rooms with the AC on और आप लोग हमको देख रहे हैं. But these guys, they are on call 24/7, ठीक है, not even a single day. Even if they call it a weekend, it's not literally a weekend for you guys. It's very understandable and it's amazing यार. मतलब बाकी ये सुन के ही ना ऐसा हो रहा था कि यार हमको कोई मुश्किल आ जाए, कोई एक आवाज उठा दे, बस अब्दुल्ला को इशारा करने की देर है. Yeah, we'll do that. I think we should continue this. Guys, we're going to go for a short break. Don't go anywhere. Keep watching Girls Republic. Guys, welcome back. You're watching this very special episode of Girls Republic on Pakistan Air Force Day. This is your Vijay Tahir Alisha and with me I have Bex and the beautiful guest I have from Pakistan Air Force. हम इनसे बातचीत कर रहे हैं. हमें जो हम ड्रामास देखते हैं, टेलीफिल्म्स देखते हैं, उसमें तो बड़ा फन नजर आ रहा होता है, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस जॉब. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग की जॉब सिर्फ मुश्किल ही होती होगी. डेफिनेटली इसमें फन एस्पेक्ट भी होता होगा क्योंकि बंदा एक तरह का काम ही नहीं कर सकता. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग सबका भी पर्सनैलिटी में वो मस्ती मजाक और वो शुरुखी वाला एलिमेंट होगा. Am I wrong? Definitely. Actually, आपकी जो नेशन है, the whole nation is depending on you. ठीक है. तो आपसे expectations बहुत ज़्यादा हैं. For that, आपका जो level of training है वो भी उतना ही high होना चाहिए to meet that expectation. But we keep a balance. कि मतलब कि ज़्यादा tough भी ना हो और मतलब उसमें हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा अपने अंदर जो थोड़ा बहुत हंसी मजाक शुगर रख लेते हैं. होता ये कि normally रख लेते हैं, मतलब रखना पड़ता है, मजबूरी अंदर से आता नहीं है. अब्दुल ऐसा नहीं, डेफिनेटली इट्स अ फीलिंग. मैं आपको शेयर करता हूँ कि होता क्या है कि जब नेक्स्ट डे हमने फ्लाई करना होता है, वी डिवाइड इनटू 2 टीम्स. तो एक टीम में जो है एक टीम में डिफेंड करना होता है, एक टीम में अटैक करना होता है. तो इट इज़ ऑफन सेड दैट the most good friend of you on the ground can be the worst enemy in the air. अच्छा. तो होता ये कि फिर then the next day we make strategies, plans कि उनको किस तरह से मारना है. ठीक है. And then हमारी जो है शर्तें लगती हैं कि देखते हैं कौन किसको मारता है in the air. And then we go up in the air, we do fights with each other. Then we come back तो हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि I shot you over there, I shot you over there. And then जो losers होते हैं वो दूसरे वाले को पार्टी देते हैं. तो it's a fun element. So how many times have you enjoyed the party और कितनी बार तुमको डैमेज हुआ? If I would say कि I always party तो I always party. अच्छा, वैसे मैं पूछूंगा कि what family backgrounds do you guys come from? तो starting with the doctor, आपके family में ही था? I'm the 3rd generation in forces. Okay. My father was in the army, my grandfather was in the army. ठीक है. So मेरे लिए यही है कि forces की life is the best life. So I still believe कि this is the best life. और as doctor भी मैं believe करती हूँ कि हमें जितना opportunity provide की जाती है हमारी further training के लिए, specialization के लिए, तो it's a great honor. अच्छा आयशा, tell me about yourself. आपकी family में था या you were the first one? I am also second generation in Air Force. My father was also in Air Force और अभी I was very inspired by him. Obviously जिस तरह उसका रामना ने बताया, बचपन से ही I've seen this Air Force life. I've moved around a lot across Pakistan because being in Air Force we keep moving.
तो दिस लाइफ फैसिनेटेड मी। अच्छा, और इंजीनियर का जो आपके साथ थप्पा लगा तो घर में फ्रिज व्रिज भी ठीक करवाने के लिए आपको कभी फरमाइश आ जाती है? मामा को काफी कंप्लेंट रहती है कि फ्रिज नहीं ठीक हो रही और घर में ओवन नहीं ठीक हो रही। जहाज बना के रहती है, मेरा फ्रिज खराब हुआ वो तो बना दो, है या मेरी स्त्री खराब हो गई वो तो ठीक कर दो। वो सारा वक्त उनको ये कंप्लेंट्स हमेशा रहती हैं। किस तरह रिस्पॉन्ड करती हो? कुछ भी नहीं, बस ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो जब हम घर जाते हैं तो हमारा दिल नहीं करता कि हम फ्रिज खोल के बैठ जाए, ओवन खोल के। अम्मा मुझे क्या काम बता रही है, कहाँ मैं जहाज ठीक करती हूँ, आपने मुझे फ्रिज में लगा दिया। आपके पास डॉक्टर कोई क्रिटिकल इस तरह के केसेस आते हैं एज इन के यू नो? असल में मेरे तो प्रोफेशन ऐसा कि डेली कोई एक्सीडेंट्स, इस तरह केसेस, इमरजेंसीज आती ही रहती हैं। डिफरेंट फैमिलीज, लोगों की फैमिलीज की भी, ऑफिसर्स की अपनी भी, तो वो मैं तो एवरी डे देयर इज एन इमरजेंसी। ठीक है, सो वो तो वे प्रिपेयर फॉर दैट। और स्पेशली पायलट की हेल्थ वगैरह से रिलेटेड हमें काफ़ी करना पड़ता है कि उनकी बैलेंस डाइट और लाइफस्टाइल उनका ऐसा होना चाहिए। So right, you know, if we talk about war, during war, अगर war लगती है तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है डॉक्टर्स की? एग्जैक्टली, हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि बेस के ऊपर अगर आपके कुछ वॉर इस तरह कोई अटैक होता है तो व्हाट विल यू डू। तो उसमें हमारी भी ये मॉक प्रैक्टिसेस होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्लास्ट हो गया है तो 100 लोगों की इंजर्ड है, तो असल में तो सारे असली होते हैं, ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बट वो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, हम उनको स्ट्रेचर पे उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा, वैसे ही लंबे हो जाते हैं, मतलब वैसे ही ले जाते हैं। राइट, तो इसमें पाकिस्तान में कितने अर्थक्वेक भी आए और फ्लड आए, तो आपने उसमें कोई रोल प्ले किया? बिल्कुल, एयरफोर्स तो ऑलवेज, बल्कि हमारे C-130s में और हमारी टीम स्पेशल बनती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, उसमें हमारे मेडिकल कैंप्स लगते हैं। स्पेशल फ्लड्स में तो भी एवरी अदर डे कोई मेडिकल कैंप लग जाता है। बल्कि अभी जो रिसेंटली नेपाल में आया था उसमें भी हमारी फोर्सेस ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो इन एनी केस ऑफ कैलेमिटी तो फोर्सेस ऑलवेज देयर। ठीक है। अच्छा, गेट टुगेदर्स जब होते हैं, ठीक है, शाम में सारी जॉब्स हो गई, सब जहाज उड़ा दिया, वापस आ गया, सब चेक हो गया, पंचर ठीक है, इंजन सही है, ठीक है, फिर शाम में कुछ पार्टी वार्टी, कुछ हल्ला गुल्ला, इस तरह का उसका क्या सीन है? डेफिनेटली आपने जो है अपने रूटीन को नॉर्मल, एक जिस तरह से एक नॉर्मल बंदे का रूटीन होता है उसमें जो है हम भी उस तरह का रूटीन गुजारते हैं। शाम में जाते हैं वापस, वी डू स्पोर्ट्स एंड देन गो आउट समवेयर, अगर कहीं बाहर खाने का मूड है, अदरवाइज वी यूजुअली डाइन इन आवर मैसेज। तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है। और म्यूजिक से कितना इंटरेस्ट है आप लोगों को? लिसनिंग की हद तक या गाने की हद तक? सुनने की हद तक। सुनने की हद तक से शेयर कर लिया यार, बड़ा यू नो, वाकई दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, फौरन से आंसर दे दिया। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि एक कोई गाना अगर हम सब साथ नेशनल सॉन्ग गाएं तो फिर वुड यू गाइस पार्टिसिपेट? लेकिन अभी आई थिंक किसी को याद ही नहीं आया, सो आई थिंक ब्रेक के बाद हम कर लेंगे। अच्छा, हम ब्रेक लेंगे इस वक्त, ठीक है। और ब्रेक के बाद हम ये करेंगे कि ब्रेक में वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सॉन्ग, डू नॉट गो एनीवेयर, हम वापस आएंगे और एक गाना गाएंगे सब। Welcome back from the break, guys. You guys are watching Girls Probably only on ARY Musik. We've got Tahir with us. We've got Pakistan Air Force with us. So yeah, we've got. Yeah, we were discussing about the fun part of the Pakistan Air Force family जो यहाँ पर है, despite of the fact they go through very hard trainings and stuff. ठीक है, हम समझते हैं कि आप लोग बहुत मुश्किल ट्रेनिंग करते हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि आप लोग बहुत हल्ला गुल्ला और तफरी करते हैं। और ब्रेक से पहले मैं गाने की बात कर रहा था और यहाँ पर सब बहुत संजीदा होकर बैठ गए यार, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि यार मुझ पर आ गया, मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना, लेकिन चले मैं आसान कर देता हूँ। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि आयशा हमको लीड करेंगी और हम सब साथ गाएंगे, लेकिन ब्रेक में हमने कुछ चेंजेस की और अब सिर्फ आयशा गाना सुनाएंगी। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब मिलकर, यस, देयर इज अ चेंज इन द प्लान, और ये है कि हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। और ये गाना है आवाज बैंड का था ये गाना, और ए जवाब। तो हम सब मिलके थोड़ा सा गाना गुनगुनाएंगे और पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स में म्यूजिक को लेकर और यू नो सिंगिंग को लेकर। बट आई एम प्रीटी श्योर वो छुपे रुस्तम होते हैं सारे, ये बड़े लायक लोग हैं जिनको बड़े देखभाल के और यू नो लिया जाता है। तो गाना शुरू करते हैं और हम सब मिलके साथ गाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टैंजा से। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, जा वतन पर वार दे, होगा हमको गम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, आँख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं, रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहां, ऐ जवा ऐ जवा जिहा तेरा निशा, ऐ जवा मंजिल है आसमां, जब तक है जा मैं जा, तू जोश को रख जवा, ऐ जवा।
सो यस, मेरा साथ बहुत ही कम लोगों ने दिया और सबके होंठ हिलते हुए नजर आए, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपका साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये काम इनको नहीं आता। तो लेकिन जो काम इनको आता है वो बहुत अच्छी तरीके से निभा जाते हैं। एक सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा था और ये डॉक्टर आमना के लिए भी जाता है और अब्दुल्ला के लिए भी जाता है कि हमारी पायलट्स की आंखें बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब दे हैव टू बी ऑन द डॉट, क्योंकि आंखों में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सबसे मुश्किल पार्ट होता है, सारे स्किल्स होते हैं लेकिन आई टेस्ट होता है तो फिर पायलट रह जाता है बस कुछ मिनट। उसके लिए व्हाट स्पेशल वुड यू एडवाइस के क्या करना चाहिए या क्या इस तरह का होता है? इनकी तो जब सिलेक्शन होती है उसी में इनकी विजन का क्राइटेरिया होता है। इट्स वेरी टफ, आपको 6x6 होना पड़ता है, अदरवाइज यू नॉट सिलेक्टेड। सो आके इनका बिकॉज काम भी ऐसा है तो उसमें यही है कि बस ज़्यादा मैं भी आज भी बच्चों को एडवाइस करूंगी आगे यंग जनरेशन को कि टीवी और ये मोबाइल फोन्स उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ थोड़ी कम करनी चाहिए और आउटडोर एक्टिविटीज़ should be encouraged. ठीक है। और डाइट वाइज, इनटेक वाइज, डाइट में हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और आजकल ये बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है यंग जनरेशन में फास्ट फूड, और इसको ज़रा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो गाजरों का जूस पीने चाहिए। नहीं, ऐसा जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है डेफिनेटली, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, अपनी आई साइड का केयर करना पड़ता है आपको। यू हैव टू बी फिजिकली फिट बिकॉज यू आर गोइंग अप इन द एयर, डिफरेंट फीलिंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स आपके ऊपर होते हैं, तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट टू परफॉर्म वेल। तो उसमें आपको यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड यू हैव टू live a balanced life. That's true. Well, Tahir, we've got a call. Would you like to take that? Oh yes, of course. Hello, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सजाद बात कर रहा हूँ कराची से। अपना नाम दोबारा बताइएगा। जी, सजाद बात कर रहा हूँ कराची से। सजाद, क्या हाल है? जी, बहुत जबरदस्त। तो ये आपका शो देखता हूँ और सबसे पहले तो एक मैसेज कि आज डिफेंस डे के हवाले से कि आई सल्यूट ऑल दी आर्म फोर्सेज और ये ऑफिसर्स जो आपके बैठे हुए हैं, दे आर डूइंग फैबुलस जॉब। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के और शो में। और मेरा एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सजाद। सवाल ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि इंडिया जो है वो एक दफा फिर थोड़ा सा हिलजुल कर रहा है, तो एक क्या कोई मैसेज होना चाहिए हमारी तमाम कौम की तरफ से, बनता भी है। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या स्ट्रेंथ है हमारी एयरफोर्स की और हमारी फोर्सेस की। तो आर्मी ऑफिसर्स, ये अपना एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनसे मेरा ये सवाल है कि हमारी स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताएं और कोई मैसेज दें यूथ के लिए, वो बहुत जरूरी है। इसका जवाब तो हमारी टीम जो सामने बैठी दिया, द बेस्ट पीपल टू आंसर द क्वेश्चन। क्या स्ट्रेंथ है हमारी इस वक्त अगर हमें ललकारा जाता है तो? एक हमारे सामने हमारे जो है बड़ों का जो है एग्जाम्पल उन्होंने सेट की हुई है। हमारे पास एक लेगेसी है जो हमारे पीछे रन कर रही है एंड वो एक ऐसी लेगेसी है, उसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं जिसमें आपका यूनुस, रफीकी, सिसल चौधरी, आज भी उनकी स्टोरीज अगर हम अपने दुश्मन को सुनाएं तो उस पर हैबत तारी हो जाए। तो उस लेगेसी को लेके हमें पता है कि हमने क्या करना है एंड टुडे वी आर इक्वली रेडी टू परफॉर्म इन केस इफ आवर कंट्री नीड अस, सो वी आर गोइंग टू डिलीवर इट। ठीक है। एंड द सपोर्टिंग टीम, वी आर रेडी, वी आर रेडी 100%। एक्सीलेंट। सो सजाद, आई थिंक आपने आंसर सुन लिया। इफ यू आर स्टिल विद अस। No, he's not. No, he's not. लेकिन I think इससे अच्छा और जवाब नहीं हो सकता कि we are fully trained and we are equipped, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे याद आई कि बहुत सारे कंपैरिजन्स होते हैं कि एरिया के लिहाज से और मेनली स्ट्रेंथ हेड काउंट्स होता है पे उसके लिहाज से कि हमारे पास ये इक्विपमेंट है, हम इस तरह स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है, हमारी फिजिकल लोकेशन एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स इनको कंसीडर किया जाता है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। Abdullah, क्या कहेंगे? It's always mattered who is the guy who is flying that machine. Definitely with that training that we depend, with that hard work that we put, we know it. With that some kind of limitations or restrictions, so we're going to do that with what we have. We are very sure and we are going to assure us to our nation. We will not let you down. I like the confidence. I like the confidence and I like the sound of it. I think the answer has been conveyed, ठीक है ना। और इससे अच्छा और कोई भी आंसर नहीं हो सकता। और
I was watching this interview जो 1965 में, I think it was सजाद हैदर नाम था उनका, and he was interviewing, he was being interviewed after उन्होंने लैंड किया था फ्रेशली, तो उनसे पूछा गया था ना कि how do you feel about your rival pilots और जो उनके थे, तो he was telling very confidently कि they were just falling like sick birds. So I really liked the answer, and there was his fellow man, उनसे ही पूछा गया कि what do you guys have to say. तो actually जो Britishers थे, they were supplying planes to the rival, the competition, and the guy said, one of the pilots said कि they should stop providing the planes to India because they are a bad marketing for them actually. So I love the answers और बहुत मजा आया मुझे, और इस तरह की जो कॉन्फिडेंस नजर आता है, एंड ऑफ कोर्स एज अब्दुल्ला मेंशन कि इट्स द लेगेसी जो कि फॉलो हो रही है, ठीक है ना, और ये हमारी पूरी टीम में जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो ऑपरेशनल स्टाफ है एंड द पायलट्स देमसेल्व्स, ये सब एक ऐसी सिनर्जी बनाते हैं मिलकर कि कोई जवाब पैदा नहीं होता कि इतना सा भी फ्लॉ हो या इतनी सी भी कोई लैकिंग हो. दे आर ऑन द डॉट, दे आर परफेक्ट, एंड आई थिंक हम जितना भी इनको एक्नॉलेज करें वो कम होगा, बिकॉज दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, दीज गाइस के हम लोग आराम से बैठते हैं, अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं. और एक और बात मैं यहाँ पे कहूंगा, मैं थोड़ा सा वियर्ड चीजें सोचता हूँ, और एक जेस्चर होता है नॉर्मल जिंदगी में कि आपके सर पे जब किसी का हाथ होता है ना, हम कहते हैं तो वो बड़ा एक प्रोटेक्शन का और उसकी फीलिंग आती है. अब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे सर पर आसमान होता है, और आसमान को जब संभालने वाले इतने अच्छे लोग हो, ठीक है ना, तो आपकी सेफ्टी का लेवल, प्रोटेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा फील होता है मुझे पर्सनली. एग्जैक्ट. हमारा शो का जो एंड पे आ गया, सो आई थिंक आप लोग कोई अपने कमेंट्स अपना देना चाहेंगे, कोई इफ यू गाइस वांट टू से एनीथिंग टू वन लाइन मैसेज टू द नेशन, ईच ऑफ यू. I would encourage all लड़कियों को भी मैं encourage करूँगी कि वो forces में आए, because it's an excellent organization और इसका environment, everything is very good. I would encourage more girls to come in this field. Excellent. Aisha? I would like to say to everyone who is watching, especially the youngsters who are watching, to own up to their nation, to feel proud of their nation, because this is their home, or nobody gets another home. This is their identity in the whole world. Excellent. Abdullah? Okay, I would give the message to the young generation that if you want to do something, you want to follow your dreams, just put in your effort, be determined, you're going to achieve it. Excellent messages. Bex, what do you have to say? Well, I would just say before winding up the show that Pakistan's Zindabad, obviously, because without a country we're nothing, because this is our homeland and we have to look after it. अगर हम अपनी country का नहीं करेंगे, obviously this is our motherland. If we're not going to do anything for our country, हमारी कौन करेगा? बिल्कुल. So yeah, just be patriotic. Yes, last but not least, I would say कि this homeland, this motherland is your identity. So don't ever think of something कि जो इसके बारे में नहीं हो या इसके साथ नहीं हो. अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और एज एन इंडिविजुअल आप अपनी ड्यूटीज एज ए गुड सिटीजन पूरी करें, बिकॉज जो आर्म फोर्सेज है दे आर डूइंग देयर बिट बिल्कुल परफेक्टली, बट एज एन इंडिविजुअल आप दूसरों पे ना डालें चीजें, खुद करें, खुद इनिशिएटिव लें, तो इंशाल्लाह कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमारी तरफ कोई आंख उठा के देखे. दिस माय मैसेज. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और पाकिस्तान से प्यार करते रहें, बिकॉज ये हमारा प्यारा वतन है. और आज हम बना रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स डे हमारी इस खूबसूरत टीम के साथ. मैं आप लोग से लूंगा इजाजत. थैंक यू सो मच. Pakistan's Zindabad together. बिल्कुल. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज.